Hello guys, hello friends. So, in previous lecture, we were discussing the different cell cycle, rather introduction of cell cycle and interphase. And interphase के दौरान G1, S and G2 phase होते हैं, and then after G2 phase, cell arrive at the cell division phase or cell starts the cell division. Now M phase or cell division phase is of two type. One is the mitosis and second one is meiosis. In previous lecture I had explained about the mitosis and meiosis, and mitosis is the equal division of chromosome and equal number of chromosome as the parents have the chromosome same number, and the child or offspring or daughter cells also have the same number of chromosome. Okay, it's called mitotic or equal cell division. Okay, जितने भी क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में भी होंगे. So we start the mitosis. Okay, so mitosis have the four different phases. The first phase is prophase, the second one is metaphase, the third one is anaphase, and the last one is telophase. So prophase, metaphase, anaphase, telophase. According to their name, the prophase is the primary or the first phase of mitotic cell division. The prophase and the metaphase means the middle phase of the cell division. Then anaphase, and the last one is telo. Telo means the end part. That's why it's called telophase. So there are four phases are there: prophase, metaphase, anaphase and telophase. Prophase, metaphase, anaphase and telophase. Okay. Now first of all we start with the prophase. So what happened during the prophase? Now you all know that in the G2 phase of interphase, the cell become large, cell with the protein, cell with the organelle, cell with the double number of genes, or double number of DNA. Okay, so now the cell starts the divide. Now what the changes occurs in the prophase, during the prophase? So I will start from the organelles. So the organelles are double in number, but जैसे जैसे the prophase will start, it start with the changing in organelles number, means they will disappear into the cytoplasm. Okay, like Golgi body, like endoplasmic reticulum and the other organelles. Now I will reach at the nucleus. Okay, so what are the changes in nucleus? So first of all, the chromatid material, I said the chromatin material, now it undergoes the several changes and they will compact. Okay, वो एकदम compact हो जाते हैं, all chromatid materials which become compact and they form the shorten, they become shortened and thick, and they form the chromatid, they form a chromosome from chromatin material. They are the single chromatid, and first of all there is the chromatid material, then it is converted into chromatin, single chromatin, and then they convert into the chromosome with the double chromatin. Okay, so the chromosome is made up into the prophase. Okay, so it slightly ये धीरे धीरे बढ़ता है. So first of all the changes in nucleus, the chromatin material is converted into the chromatin and then it's converted into the chromosome. Okay, first of all the chromatid become compact and they fuse together and they become shortened and thick with the single, they have the with the single a circular middle part, उसके अंदर होगा centromere. Now the center part of chromosome is centromere. So centromere is there. Okay, so centromere है वहाँ पे. Now धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग दूसरा क्या चेंज हो रहा है? दूसरा हो रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
become disappear and the nucleolus is also become disappear. So Golgi body, endoplasmic reticulum, nuclear membrane and nucleolus, all organelles become degenerated, they become disappear, and only the chromosomes are there. Now the second changes क्या हो रहा है कि सेंट्रियोल है वो सिंथेसिस फेज जो था एस फेज, उसके दौरान वो डुप्लीकेट हुई थी सेंट्रियोल. सो सेंट्रियोल है वो अब डुप्लीकेट होके वो एक दूसरे से सेपरेट हो रही है टूवर्ड्स द डिफरेंट पोल्स, वो अलग अलग पोल्स की ओर बढ़ रही है. यहाँ पे ये दो पोल्स है, सो यहाँ से वो धीरे धीरे सेपरेट हो रही है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, एंड देन फाइनली दे बिकम सेपरेटेड एंड दे गोज टू दी डिफरेंट पोल्स. ओके, वो अलग अलग पोल्स की ओर बढ़ रही है. फाइनली इन द लास्ट और द लेट प्रोफेज, जो लेट प्रोफेज है इसको लेट प्रोफेज बोलेंगे. In the late prophase, the chromosomes are scattered into the cytoplasm. There is no nucleus, there is no nuclear membrane, nucleolus. Means the particular nucleus structure is disappeared. The chromosomes with the centromeres, the chromosomes are scattered in the cytoplasm with their centromeres, and chromosomes are with the two chromatid, and they are scattered with the in the cytoplasm. Okay. And centrioles become separated. Now, after late prophase, the metaphase is arrived. Okay, so metaphase में क्या होता है कि metaphase आते ही जितने भी क्रोमोसोम scattered थे in the cytoplasm, उनके अंदर सेंट्रोमियर बना था. सेंट्रोमियर के अंदर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर. सॉरी, kinetochore. So this is the plate-like structure which present in into the centromere. So it is the kinetochore. There is the two plate-like structure. This is the one centromere is there, and this is the one plate, and this is the another plate. So two plates are there. That's called kinetochores. Okay. So यहाँ पे क्या देखेंगे हम कि जो सेंट्रोमियर है उसके काइनेटोकोर्स है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काइनेटोकोर? सो काइनेटोकोर इज कनेक्ट विद और अटैच्ड विद द सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं. सो द स्पिंडल फाइबर्स, नाउ स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड विद द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, रादर काइनेटोकोर ऑफ सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर के जो काइनेटोकोर है उसके साथ वो अटैच हो जाते हैं. ओके, एंड देन एक जो इक्विटोरियल प्लेट होती है जिसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट. ओके, वहां पे यानी सेल के जो इक्विटोरियल प्लेट है वहां पे सारे सेंट्रोमियर्स हैं वो अरेंज हो जाते हैं इन दी लेट मेटाफेज. यानी ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, पहले उनको अरेंज करते हैं इन दी मेटाफेज प्लेट या इक्विटोरियल प्लेट पे. ये इक्विटोरियल प्लेट है, वहाँ पे सारे सेंट्रोमियर्स हैं वो अरेंज हो जाते हैं. मीन्स सारे जो क्रोमोसोम्स हैं उनके सारे जो सेंट्रोमियर्स हैं वो एक मेटाफेजिक प्लेट और इक्विटोरियल प्लेट पे अटैच हो जाते हैं, सॉरी अरेंज हो जाते हैं. देन ये जो काइनेटोकोर के साथ अटैच हुआ है स्पिंडल फाइबर, ये उसके साथ ज्वाइन होता है. यहाँ पे मेटाफेज कंप्लीट हो जाता है. If you want to see a clear chromosomal picture, you just see the metaphase. आप जब मेटाफेज देखेंगे तो you can get the specific chromosomal picture. आपको एक chromosomal picture मिलेगी जो आपको मेटाफेज में मिल सकती है, क्योंकि इसमें जो सारे क्रोमोसोम हैं वो एक ही साथ आपको मिल सकते हैं, एक ही साथ उनको आप देख सकते हैं. दैट्स वाई मेटाफेज के अंदर आप पूरे क्रोमोसोम की पिक्चर निकाल सकते हैं. ओके, नाउ जब मेटाफेज के अंदर सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे होंगे, देन इट गोज टू दी एनाफेज स्टेज. यहाँ से वो एनाफेज स्टेज में जाते हैं. एनाफेज स्टेज में क्या होता है कि एनाफेज स्टेज में ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो काइनेटोकोर से वो बाइंड है विद दी स्पिंडल फाइबर.
ओके, नाउ क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो स्पिंडल फाइबर इसको खींचते हैं। ओके, स्पिंडल फाइबर इसको खींचते हैं। ये सेंट्रोमियर से काइनेटोकोर्स, एक डिफरेंट काइनेटोकोर, एक काइनेटोकोर ऊपर से सेंट्रोमियर के साइड बाइंड है, एक नीचे से बाइंड है, दो काइनेटोकोर्स मैंने पहले बोला था आपको। अब ये उनको खींचते हैं स्पिंडल फाइबर्स। सो काइनेटोकोर्स से ये जो क्रोमेटिड है सॉरी, वो क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती है। ओके, नाउ इट इज अ सिंगुलर क्रोमेटिड, और ये क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो जाती है, सॉरी, वो क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो जाती है towards the different poles. Okay, they goes to the different poles. It's called anaphase. Sorry, anaphase के दौरान, sorry, एनाफेज के दौरान ये जो दोनों क्रोमोसोम्स है, सॉरी दोनों क्रोमोसोम नहीं, क्रोमोसोम है, ये सेपरेट होता है एंड सिंगल क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड टुवर्ड्स द डिफरेंट पोल्स। इसको खींचते हैं, स्पिंडल फाइबर्स हैं वो। देन इट गोज टू द टीलोफेज एरिया। ओके, अब टीलोफेज में क्या होता है कि टीलोफेज के अंदर दोनों क्रोमोसोम, सॉरी दोनों पोल्स की ओर ये जो सारे क्रोमेटिड्स हैं वो पहुंच जाते हैं। नाउ हम इसको क्रोमोसोम नहीं बोल सकते क्योंकि वो सिंगुलर हो गए हैं। जो दो क्रोमेटिड्स थी वो क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गई है एंड इसको हम अब क्रोमोसोम नहीं बोल सकते। नाउ द क्रोमेटिड्स आर कन्वर्टेड इनटू द क्रोमेटिड मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल। अब हम इसको अब हम इसको क्रोमोसोम नहीं बोल सकते, क्रोमेटिन नहीं बोल सकते। इट कन्वर्टेड इनटू द क्रोमेटिड मटेरियल, दे आर कन्वर्टेड इनटू क्रोमेटिड मटेरियल। ओके, अब धीरे धीरे कौन सी प्रोसेस हो रही है कि अब क्रोमेटिड मटेरियल बन चुका है एट द डिफरेंट पोल्स। उसके साथ पैरेलल क्या होता है कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल अपीयर, देन न्यूक्लियोलस विल अपीयर, धीरे धीरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल अपीयर एंड गोल्गी बॉडीज आर अपीयर। वो सारे जो ऑर्गेनल्स हैं जो डिसअपीयर हो गए थे, अब वो धीरे धीरे करके अपीयर होने लगेंगे, वो धीरे धीरे दिखने लगेंगे। ओके, सो दिस इज दी प्रोसेस जो टीलोफेज में हो रही है। सो फिर से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर धीरे धीरे जो सेंट्रियोल्स है वो अलग हो रही है, क्रोमेटिड मटेरियल कॉम्पैक्ट हो रहा है, शॉर्टन हो रहा है, थिक हो रहा है एंड क्रोमोसोम बनाएंगे। नाउ क्रोमोसोम बनने के बाद उसके अंदर सेंट्रोमियर होगा जिसके अंदर काइनेटोकोर है, और जो सारे सब न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने की वजह से सारे क्रोमोसोम्स है वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। देन यहाँ पे क्या होगा कि सारे जो क्रोमोसोम्स है उसको ये जो स्पिंडल फाइबर्स है उस काइनेटोकोर के साथ बाइंड होके इसको एक अरेंजमेंट में उसको एक अरेंज करेंगे। देन ये जो पूरी इक्वेटोरियल प्लेट है वहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से वो अरेंज हो जाएंगे। ओके, देन स्पिंडल फाइबर्स उनके साथ बाइंड हो जाएंगे काइनेटोकोर्स के साथ। नाउ स्पिंडल फाइबर्स है उनको खींचेंगे और क्रोमोसोम है उसकी जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएगी। क्रोमेटिड्स बिकम सेपरेटेड दैट्स एंड एट द डिफरेंट पोल्स, वो अलग अलग पोल्स की ओर सेपरेट होंगी। नाउ उसके बाद क्या होगा कि क्रोमेटिड्स आर प्रेजेंट एट द डिफरेंट पोल्स। देन उसमें क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने चालू हो जाएगा, न्यूक्लियोलस बनने चालू हो जाएगा, डिफरेंट ऑर्गेनल्स बनेंगे, क्रोमेटिड्स कन्वर्टेड इनटू क्रोमेटिन मटेरियल और पूरा वहाँ न्यूक्लियस बनेगा। यानी एक ही सेल के अंदर अब दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। दिस इज द होल प्रोसेस which occurs during the telophase last. Okay, telo means last, that's why it's called telophase. So पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई है। अब क्या होता है, the last part is cytokinesis. The last part is cytokinesis means यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका है। कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है मीन्स आपको एक ही सेल में दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, मीन्स न्यूक्लियस का जो डिवाइडेशन है कैरियोकाइनेसिस वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। सो आप यहाँ पे जो टीलोफेज है वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस के दो डिफरेंट पैटर्न हैं। साइटोकाइनेसिस मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। सो साइटोप्लाज्म डिवाइडेशन के दो अलग अलग पैटर्न है, एक है एनिमल सेल का और दूसरा है प्लांट सेल का।
यहाँ पे जो आप देख रहे हैं टीलोफेज में, वो प्लांट सेल का है, एनिमल सेल का। मीन्स एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोप्लाज्म जो डिवाइड होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम द पेरिफेरल एरिया। मीन्स यहाँ पे जो पूरा जो सेल्स है, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन, वो बीच में से सेल मेम्ब्रेन में एक ग्रूव होती है, एक पॉइंट पे थोड़ा वो कर्व होता है, एंड दे फॉर्म अ ग्रूव, एंड धीरे धीरे ये जो पेरिफेरल एरिया से वो ग्रूव आगे बढ़ती रहती है एंड सेंट्रल एरिया तक आती है, धीरे धीरे से ये आगे बढ़ के। दैट्स वाई आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बोथ द सेल मेम्ब्रेन जॉइंट टुगेदर, बाहर से वो अंदर आके ये पूरे ऐसे जॉइंट होते हैं इन द सेंट्रल एरिया, पेरिफेरल एरिया टू सेंट्रल एरिया, एंड यू कैन गेट द 2 न्यू डॉटर सेल विद द 2 न्यूक्लियस एंड डिफरेंट ऑर्गेनल्स। यहाँ पे जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है तो ऑर्गेनल्स है वो इक्वली डिवाइड होगी। ओके, ये जितने भी ऑर्गेनल्स होगी वो इक्वली डिवाइड होगी इन दी डिफरेंट सेल्स। ओके, सो ये बात एक आपको जानना है कि इक्वली डिवाइड होती है इन दी सेल्स। ओके, अब सर व्हाट अबाउट द प्लांट सेल? प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। सो यहाँ पे थोड़ा अलग पैटर्न है सेल वॉल के, बिकॉज ऑफ सेल वॉल। यहाँ पे जो प्लांट सेल है, फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज द प्लांट सेल। सो प्लांट सेल में अगर यहाँ पे एक न्यूक्लियस बन चुका है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस बन चुका है, सो प्लांट सेल में इट स्टार्ट विद द सेंट्रल पार्ट। यहाँ पे ऐसे जो मिडल लेमिलीज होती है, जो मिडल लेमिली अगर आपको याद हो, सेल वॉल के बाद में दो सेल वॉल है एक दूसरे के एडजेसेंट में, तो दूसरे बीच में मिडल लेमिली होती है। ओके, इंटर लेमिली और मिडल लेमिली। वो मिडल लेमिली फॉर्म से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द सेंट्रल सेल वॉल बनना स्टार्ट होगा, फ्रॉम द मिडल सेल वॉल बनना स्टार्ट होगा, और वो धीरे 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 यहाँ से जो बनेगी तो ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी ऐसे, देन आगे ज्यादा अंदर की तरफ से बाहर की तरफ, एंड देन दे फाइनली रीच एट द आउटर साइड एंड दे फॉर्म द 2 डिफरेंट सेल्स ऐसे। इट स्टार्ट विद द मिडल लेमिली एंड वो सेल वॉल बनाती जाएगी फ्रॉम द मिडल, and then they reach at the end point or outer side and they form the 2 daughter cell. So plant cell and animal cell के जो साइटोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस में डिवाइडेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, वो 2 टाइप का है। एनिमल सेल में आउटर साइड टू इनर साइड होता है, और प्लांट सेल में इनर साइड टू आउटर साइड होता है। ओके, और इसके इक्वल ही वो भी डिवाइड होता है, ऑर्गेनल्स भी डिवाइड होती है। ओके, न्यूक्लियस तो पहले ही डिवाइड हो चुका है, सो ऑर्गेनल्स भी उसके अकॉर्डिंग इक्वली डिवाइड होंगी डॉटर सेल्स में। ओके, सो दिस ऑल अबाउट दी माइटोसिस या इक्वल सेल डिवीजन, कि जिसमें क्रोमोसोम इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दूसरे में एक ही सेल से 2 सेल बनेंगे, उस दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे, यानी नंबर ऑफ जीन्स और नंबर ऑफ डीएनए इक्वल होगा, 2n से 2n बनेगा। वो जो पूरी प्रोसेस है उसको बोलते हैं माइटोसिस। उसके 4 फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ओके, सो बाकी का जो कुछ भी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वी स्टार्ट विद द मियोसिस, बट मियोसिस से स्टार्ट से पहले हम देखेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, इसका क्या इंपॉर्टेंस है बॉडी में, उसके बारे में हम देखेंगे। देन वी विल गो टू मियोसिस। ओके, सो यहाँ तक रखता हूँ। ओके, बाय।